हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं क्लास 12th का इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चलती होगी। चलिए देखते हैं किस तरीके के प्रश्न आते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। The first 15 minutes are allotted to the candidates for reading the question paper. प्रारंभिक 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन के सामने कितने नंबर का प्रश्न है ये दिया गया है। सेक्शन ए पर चलते हैं। सेक्शन ए है रीडिंग और इसका पहला प्रश्न है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज पढ़ते हैं। The shift in the mindset of India's younger generation is quite visible. While they are patriotic, prepared to join any movement, march, waving political flags, join Facebook groups, they are not in most cases convinced by Indians' culture. In fact, they ask questions that evidence their dissatisfaction with and disinterested in what we call culture, values and ethics. Why do we live in a joint family? I believe in God but not in temples or puja. Why can my parents not understand me? They are turning from obedient to rebellious young adults. It is an alarming note, and all the same parents say what's wrong with our children, they are going astray. आगे है if you ask an elderly Indian how are you, the chances are your question will be answered why God's grace everything is fine. This is the fruit of culture, deep satisfaction despite ups and downs of daily life. Indians' values have kept India strong and united despite thousands of years of invasions. However, the youth of today are being raised differently from those in previous generations. Information is at their fingertips. Give them scientific, rational, pragmatic reasons. The values and the ethics of centuries ago are just as valid and applicable today as then. We only have to explain them differently. इसमें प्रश्न दिए गए हैं और इस पैसेज से देखकर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें पहला प्रश्न है What change in the mindset of the Indian youth is visible nowadays? 3 नंबर का है। दूसरा प्रश्न है What is the conflict between the parents and children? ये भी 3 नंबर का है। इस पैसेज में तीसरा प्रश्न है How has Indian culture affected our attitude? ये भी 3 नंबर का प्रश्न है। और अगला प्रश्न है What should be done to bring the youth back to their culture roots? 3 नंबर का है। और फिर है Find the word from the passage that means agreed. 1 नंबर का। दूसरा है Which phrase in the passage means a warning sign? ये भी 1 नंबर का है। फिर है Which word in the passage is opposite of illogical? ये भी 1 नंबर का प्रश्न है। फिर आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी है राइटिंग। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ये 10 नंबर का है। 10 नंबर का है डिजिटल इंडिया, जॉइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द हावर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इन तीनों में से राइटिंग का अगला प्रश्न है राइट अ लेटर टू
proprietor of ABC Sports, Palika Bazaar, New Delhi to place an order for cricket kits, or write a letter to the editor of a national newspaper to express your views on growing fitness craze in youth. मैं आपको एक बात बता दूं, लेटर टू एडिटर बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो एक आप लेटर टू एडिटर आ नेशनल न्यूज़पेपर या अदर दैनिक न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, किसी का भी एक आप तैयार कर लेना। फिर चलते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी है ग्रामर। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 10 नंबर में है ये 10 नंबर में है। चलिए देखते हैं। ए है द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स, इंचिंग टूवर्ड्स का क्या अर्थ है? टू हैव एन इची फीलिंग, टू मेजर समथिंग, टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन और टू मूव अपवर्ड्स। फिर है प्रश्न सी है द सिनोनिम्स ऑफ ऑडेशियस इज, ऑडेशियस का पर्यायवाची क्या है? डार्लिंग, एडामेंट, एडवेंचरस या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। प्रश्न डी है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा वाक्य इनमें से सही है? ऑप्शन दिए गए हैं ओनली ए एंड डी, ओनली वी, ओनली ए, वी एंड सी, ओनली वी एंड डी, इनमें से देखना है। फिर है द एंटोनिम ऑफ स्कर्ट, स्कर्ट का विलोम शब्द क्या है? प्योर, पियर्स, क्लीन, प्रोफेंस। अगला प्रश्न है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, इनमें से किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। फर्स्ट है आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, रोहित सेड टू अस लेट्स गो फॉर अ। उसके बाद है combine any one of the following as directed. I can give you a dress, my mother gifted it to me. Complex sentence में चेंज करना है। Do it, leave it, compound sentence में चेंज करना है। फिर है transform any one of the following as directed. He has saved my life, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। फिर है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इनमें से किसी एक सेंटेंस को करेक्ट करना है। यू आर सीनियर देन मी, कैटल्स आर ग्रेजिंग। फिर है अगला प्रश्न है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। 2 नंबर का है मेल, मेल, टीम, टीम। फिर है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, इस पैसेज को इंग्लिश में चेंज करना है। चलो पढ़ते हैं। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे जहाँ वह अपना खुद भोजन बनाते थे। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। ये देख महिला ने उनसे पूछा आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, अब आप क्या खाएंगे? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज़ है, ये मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही। देने का आनंद पाने का आनंद से बढ़कर है। इसको ट्रांसलेट करना है। फिर आते हैं सेक्शन डी लिटरेचर। लिटरेचर में प्रश्न देखेंगे। इंग्लिश लिटरेचर। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। 40 शब्दों में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल। और हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। इनमें से इन 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। फिर है अगला प्रश्न है व्हाई डिड मिस्टर हैमिल ब्लेम पेरेंट्स
and himself for not paying proper attention to the study of French? Or why was the Jimny Studies a popular place for poets? इन दो में से किसी एक प्रश्न का उत्तर करना है। अगला प्रश्न है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 शब्दों में 80 शब्दों में उत्तर देना है किसी एक प्रश्न का। देखते हैं। पहला है, ऑल वी हैव द फेयर इज फेयर इटसेल्फ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर। दूसरा है, सोफी वाज द क्रिएटर ऑफ हर ऑन डिसअपॉइंटमेंट, डू यू अग्री, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है 80 शब्दों में। अगला प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पोइट्री का है, एंड द ओल्ड फैमिलियर एट माई चाइल्डहुड फेयर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और इसके ये प्रश्न दिए गए हैं पोइट्री के, इनका उत्तर देना है। चलिए देखते हैं। व्हाट इज द फियर दैट हैज ऑलवेज पेन्ड द पोइट्स? What is the contrast between the poetess feelings and her words? अगला है, why did the poetess keep on smiling only? फिर है अगला प्रश्न, write the central idea of any one of the following poems. 3 पोएम्स के नेम दिए गए हैं, इनमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया करना है। पहला है कीपिंग क्वाइट, दूसरा है थिंक ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड। आप आ कीपिंग क्वाइट और थिंक ऑफ ब्यूटी बहुत आता है, इनमें से किसी एक का ज़रूर याद करना। फिर अगला प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। 40 शब्दों में उत्तर देना है किसी इनमें से। चलो देखते हैं। व्हाट थिंग्स ऑन द थर्ड लेवल वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल्स, और डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका। फिर है, वाई डिड द महाराजा डिसाइड टू सफ़र द हक्स लॉस इंस्टीड ऑफ द फॉलोइंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफ विद द हंटेड टाइगर, और हाउ वाज वामा इंस्पायर्ड बाय हर एल्डर ब्रदर। फिर है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 शब्दों में किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए देखते हैं। व्हाट ब्रिंग डेरी क्लोजर टू मिस्टर लैम। दूसरा है, व्हाट इम्प्रेशन ऑफ सदाव एज अ डॉक्टर एंड अ ह्यूमन बीइंग डू यू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द एनिमी।